Hello, dear students. You're welcome in today's session. Today we will discuss words used as noun, verb, and adjective. ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾउन, verb ਤੇ adjective ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੇ, ਨਾउन, verb ਐਂਡ adjective. ਨਾउन ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਮ, verb ਕਿਰਿਆ, adjective ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪ 'ਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? verb ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾउन ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਏਅਰ। ਏਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਵਾ। ਬੋਲਣ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਏਅਰ ਨਹੀਂ, ਏਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾउन ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ I could feel the air on my face. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਏਅਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਨਾउन ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ verb ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਵਾ ਨਾउन ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I am enjoying the cool air। ਔਰ verb ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ I always aired my opinion freely। ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀ ਜਾਂ ਈਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ verb ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ verb। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, I always air my opinion freely। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਏਅਰ? ਹਵਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਬਰੇਵਰੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਨਾउन ਦੇ ਤੌਰ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਐਕਟਡ ਵੈਲ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਨੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨਾ। ਐਡਰੈਸ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਨਾउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟ੍ਰੇਸਡ ਹਰ ਨਿਊ ਐਡਰੈਸ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। verb ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡਰੈਸ ਦ ਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ? ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਐਡਰੈਸ, ਪਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਯੋਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ। ਇਹ ਵੀ ਨਾउन ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾउन ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਯੋਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਐਡਰੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। PM ਐਡਰੈਸ ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੀ ਐਡਰੈਸਡ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬੇਟਾ? ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਅਟੈਂਪਟ। ਅਟੈਂਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜੇ ਤਾਂ ਨਾउन ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜੇ verb ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਰ ਮੇਡਨ ਅਟੈਂਪਟ। ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਰ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ। ਮੇਡਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਡਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਯੂ ਮਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਆਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਅਟੈਂਪਟ ਆਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਈ ਅਟੈਂਪਟਡ ਆਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਟੈਕ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਔਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਸੀ।
ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਫॉर द डायरेक्ट अटैक, ये भी नाउन है। वर्ब दे विच पोरस अटैक्ड हिज एनिमी फेरोशियसली, फेरोशियस इस शब्द चाहे ना लिखियो बेटा, ਇਹਦੀ ਲੋੜ नहीं, सीधा तुसी पोरस अटैक्ड हिज एनिमी। ऑल ऑफ अ सडन भी लिख सकते, सडनली, सडनली ही अटैक्ड हिज एनिमी, सिंपल, सडनली ही अटैक्ड हिज एनिमी। आंसर, हिज आंसर सैटिस्फाइड द पुलिस, उस दे उत्तरां ने पुलिस नूं सैटिस्फाई करता। आंसर्स मतलब उत्तर। वर्ब, शी आंसर्ड द ऑफिसर पोलाइटली, उसने ऑफिसर नूं बड़ी निमरता नाल जवाब दिता। जे इहदा तुसीं होर चीज़ देखना चाहुंदे हो इहदे आंसर, तां मैं तुहाडे लई नोट तैयार कीते। हिज आंसर सैटिस्फाइड मी, ये हो गया तुहाडा नाउन। हिज आंसर सैटिस्फाइड मी, उस दे उत्तर ने मैनूं संतुष्ट किया। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चनस, ये होगी वर्ब, उसने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिता। नेक्स्ट वर्ड बैक, नाउन, ही वाज हिट एट द बैक बाय द opponent. There was a pain in my back, there is a pain in my back, इवें लिख सकते हो, मेरे बैक दे विच, पिठ दे विच दर्द है। Verb, I always backed by my friends in trouble, इत्थे backed by की है बेटा, सपोर्ट करना, always backed by, इत्थे backed by है सपोर्ट, मेरे मित्र मेरी हमेशा सपोर्ट करते हैं मुसीबत किया गया है। आगे एडजेक्टिव भी बनाया बेटा दा विशेषण, ही अप्रोच द किचन फ्रॉम द बैक डोर, और रसोई दे विच पिछले दरवाजे तो आया, बैक डोर, दिस इज़ द बैक डोर ऑफ माई हाउस, डोर की विशेषता बैक दस रहा है, ठीक है, जिवें आपां कहने बैक बेंचर्स, ही वाज कॉल्ड एज बैक बेंचर्स, मतलब किसी उहदी विशेषता, नाउन की विशेषता दस रही है बैक, तो उत्थे की हो गया बैक एडजेक्टिव के तौर पर आ गया। हाँ जी बेटा समझ आया ना सारे ये। नैक्सट चलते हैं आप, क्राई, नाउन, क्राई इन द चीक, आई कुड हियर हर क्राई इन द कॉर्नर, मैं एक कोने दे विच ओहदी चीक सुन सकदा सी। चीक, नाउन, सिंपली आई हर्ड हिज क्राई, दिस कैन बी आई हर्ड अ क्राई, सिंपली आई हर्ड अ क्राई, दिस इज नाउन, दिस वन नाउन, आई हर्ड अ क्राई। द बेबी वाज क्राइंग, दिस इज वर्ब, बच्चा रो रहा सी, काम हो रहा सी, तो वर्ब, चीज़ का नाम हो गया, चीक सुनी तो नाउन। क्लियर, इट वॉज अ क्लियर स्काई, आकाश साफ है, इत्थे क्लियर स्काई की है, आकाश साफ। वी मस्ट क्लीयर योर डाउट्स, सानू तुहाडे डाउट्स जरूर क्लीयर करने चाहिए, जिवें तुहाडे पेपरां च क्वेश्चनस दे विच डाउट हुंदे ना, उन्हां नूं क्लीयर करना। क्लीयर साफ, डाउट तुहाडे जिहड़े कोई शक ने दूर करने चाहिए, तुहाडे कन्फ्यूजनस ने। डांस, डांस इज़ अ गुड एक्सरसाइज, आई मैट हर एट अ डांस लिखे ना इत्थे, मैं उसनूं डांस ते मिलिया, ते आपां कहे डांस इज़ अ गुड एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। शी डांस एट वैल, वो वधिया नच्ची, उसने वधिया डांस किया, आ गया तो वर्ब है। डिमांड, योर डिमांड्स आर हाई, दिस थिंग इज़ नॉट इन डिमांड नाउ, हुण ये डिमांड दे विच नहीं है। He was demanding undue favors, he was demanding 10 rupees भी लिख सकते हैं, इवन undue favors है तो लिखो ₹10, he was demanding ₹10, he was demanding a notebook, a new dress, नाले नाउन बन जो ड्रेस का, अगे ड्रेस का नाउन की, शी परचेज्ड अ न्यू ड्रेस, उसने एक नवी ड्रेस खरीदी, तो इत्थे ड्रेस चीज़ का नाम है। शी वॉज ड्रेस टू किल, देखो इतने कई बार आम बंदे समझ नहीं आता ड्रेस टू किल का की मतलब, आप कई बार कहते ना किसी ड्रेस बहुत सोहनी लगती है, तो आप कहने हाई कितनी सोहनी ड्रेस है, बहुत ही वधिया है, तो इत्थे इहदा पंजाबी की है, ट्रांसलेशन की है कि उसने इन्ने सोहने कपड़े पाए हुए सी कि मतलब बहुत ही सोहनी लग रही सी। जिवें आप कह दें आम ही पंजाबी जिवें किसी मजाक करते हुए जिवें कतल करना किसी का, भाव के बहुत सोहना लगना, शी वॉज ड्रेस टू किल, बहुत सोहनी लग रही सी। डील, वी फाइनलाइज द डील, असीं समझौता कर लिया, डील कोई समझौता करना, कोई व्यापार का या किसी चीज़ का, वी फाइनलाइज द डील। हर फादर डील्स इन शुगर, इत्थे डील व्यापार करना, उत्थे डील समझौता, कंट्रैक्ट। डील्स, उसके पिता जी खंड का व्यापार करते हैं, डील्स इन शुगर खंड का व्यापार करते हैं। वी फाइनलाइज द डील, असीं समझौता जिहड़ा वो फाइनलाइज किया, कंट्रैक्ट साइन किया। दिस वॉज अ नाइस डील बिटवीन टू कंपनीज, बिटवीन टू ऑफिसर्स। हाँ जी,
नैक्सट देखते हैं आप आई सिंपली अपना ऑर्गन, आई इज ऑर्गन ऑफ आर बॉडी। He's got hurt in his right eye। उसदी सज्जी अख दे विच चोट लग गई। She has been eyeing this position for long। वो काफ़ी देर तो इसी तरह ही वेख रहे हैं। आइंग मतलब अखां लगा रहे हैं। एक्सक्यूज़ नाउन बहाना। He always makes silly excuses। वो बेकार जे बहाने बनाउंदा है। वर्ब आई क्वाइटली एक्सक्यूज माईसैल्फ फ्रॉम द मीटिंग। मैं मीटिंग तो अपने आप नूं दूर कर लिया। इत्थे एक्सक्यूज की है, मीटिंग तो दूर कर लेना, बहाना बना लिया जा कह लो परा हो गया, मीटिंग तो नहीं रहा। फेस सिंपल चा, शी हैज़ अ वेरी फोटोजेनिक फेस। तो इन्ना जरूरी नहीं कि इस तरह शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस। यू कैन आल्सो राइट, जे नोट दे विच आपां इहनूं लिखना होवे तां तुसीं लिख सकदे हो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस। उसका फेस जिहड़ा वो बहुत सोहना है। आई हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। ये तो हो गया तुहाडा बेटा नाउन। अगर इसनूं तुसीं वर्ब दे तौर ते लेना चाहुंदे हो तां तुसीं इहदा आपां वर्ब भी बना सकदे हां। वर्ब दे विच किवें वर्ब बनानी है, मान लो फेस दी होई आई हैव फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। मैं बहुत सारियां प्रॉब्लम्स नूं फेस किया है। हाँ जी, समझ आई बेटा। तो अगे फियर, देयर वाज नो टाइम फॉर फियर। कोई समा नहीं डरदा। वो अपने को लैसन भी सी +1 दे विच नो टाइम फॉर फियर। हुण तां शायद वो सिलेबस दे विच रिड्यूस कर दिता गया। सिंपल फियर दा भी हो सकदा है। देयर इज़ नो प्लेस इन माई लाइफ फॉर फियर। एवरीवन शुड फियर गॉड। हर एक नूं रब तो डरना चाहिए है। अगली देख लेने जल्दी ना। लाइट, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। इतना हो गया स्विच ऑन द लाइट, लाइट जगा दो। नाउन ही लाइटेड द लैंप, जला दिता। एडजेक्टिव दिस क्लोज इज एज लाइट एज अ फेदर। दिस क्लोज इज लाइट लाइक अ फेदर, पंख की तरह लाइट है। दिस इज लाइट हाउस। लैक कमी, ही कुडंट फेस फीस ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। देयर इज लैक ऑफ मनी। ही लैक्ड इनफ करेज टू स्पीक द ट्रुथ। वो सच बोलन की उहदे च कमी सी। लुक, द लुक इन हर आइज गेव अवे द सीक्रेट। उसदी अखां दे विच नज़र जिहड़ी है उसने सारा सीक्रेट खोलता। ये औखा भी है, सिंपल भी लिख सकते हैं। आई वॉज प्लीज्ड एट हर लुक। आई लुकड एट हिम विद सरप्राइज। मैं उस पल हैरानी नाल वेखिया। लैंड, ही वॉज टीलिंग द लैंड। टिल के नाम दे खल चलाना। द प्लेन लैंडेड सेफली। जहाज़ सही तरीके नाल उतर गया। लीव, आई एम ऑन लीव फॉर 1 डे। सिंपली आई एम ऑन लीव फॉर 1 डे। ही इज़ लीविंग द स्टेशन टमोरो। कल नूं जा रहा हो। लव, आई लव हिम। ये तो वर्ब हो गया ना, मैं उसनों प्यार करता हाँ। तो जे लव द नाउन, लव इज़ द ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड। आई विल ऑलवेज लव माई कंट्री। लव योर कंट्री। ये सारे की हो गए बेटा वर्ब्स हो गए। किसी तरीके नाल भी बना सकते हैं। पॉज, मैंने थोड़ी देर लिए रुकना। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच विद मैनी पॉजेज। रुक रुक के स्पीच दी। आई पॉज्ड फॉर अ मोमेंट। एक पल रुकिया। मैनी पॉजेज बहुत बार रुकना। इत्थे रुकिया काम कर रहे है। प्रॉमिस, वी मस्ट कीप आर प्रॉमिस। सिंपल चा। ही कैप्ट हिज प्रॉमिस। ही प्रॉमिस्ड मी टू हेल्प। इत्थे ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प लिखे ना। आई प्रॉमिस्ड हिम टू हेल्प। जस्ट इन्ना भी लिख सकते हो बेटा। ही प्रॉमिस्ड हिम टू हेल्प, ओनली टू हेल्प लिख दो। प्रेजेंट, ही गेव मी ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट। बहुत सोहना तोहफा दिता है। तोहफा, ही प्रेजेंटेड हिज केस फोर्सफुली। उसने अपने केस नूं धक्के नाल प्रेजेंट किया। ही प्रेजेंटेड हिज व्यूज़। ही प्रेजेंटेड हिज केस, कल्ला इन्ना भी लिख सकते हैं। पे, शी रिसीव्ड हर पे इन हर अकाउंट। ਉਹਦੇ अकाउंट 'ਚ पे जमा होगी, मिल गई। ही हैज़ अ स्मॉल पे, उन्होंने तनख्वाह थोड़ी मिलती है। ही पेड द बिल इन टाइम। उन्हें खर्चा पे करता, बिल पे करता। क्वेल, अ क्वेल अमंग रियल फ्रेंड डजन लास्ट लॉन्ग। सच्चे दोस्तों च लड़ाई ज़्यादा देर नहीं चलती, पर यह औखा है बेटा। आई सॉ अ क्वेल इन द स्ट्रीट। मैं गली में एक लड़ाई वेखी। वर्ब, द नेबर्स वर क्वेलिंग ओवर अ ट्रिफल। ट्रिफल कहते छोटी जी गल ते। द नेबर्स वर क्वेलिंग सीधा भी हो सकता। टू फ्रेंड्स वर क्वेलिंग, लड़ रहे सन। सिंपल। तो प्यारे बच्चों, ये सी अपने वर्ड्स नूं नाउन, वर्ब ते एडजेक्टिव के तौर पर वरतना। यानी कि नाउन कित्थे, नाम कित्थे है, वर्ब कित्थे है, ते विशेषण का काम कित्थे कर रहे हो, उही वर्ड।
तो इस तरह के डिफरेंट वर्ड जोड़े ने तुहाडे आना तुहानूं आना एक पेपर च एक जां दो आएंगे जो एक करना होगा तो उसनूं तुसीं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच दे विच यूज़ करना है। कई जिहड़े एग्जैक्टिव के तौर पर नहीं यूज़ होंदे तो नाउन ते वर्ब के तौर पर कर दो, बाकी उत्थे उन्होंने स्पैसीफाई पेपर च कीता हुंदा। तुहानूं पता ही होना चाहिए कि नाउन की ये नाम है, थिंग है, किसी चीज़ का नाम है जिसनों आपां महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जां फिर कह लो कि आपां वेख सकते हैं। तो वर्ब की हुंदे क्रिया जिहड़ा काम हो रहा है, तो एग्जैक्टिव की हुंदे विशेषण किसी चीज़ की विशेषता दस रहा है। तो इसी साडे वर्ड्स। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से तुहानूं समझ आ गया होना बेटा सारा। ठीक है बेटा, फिर मिलांगे। थैंक यू बेटा।